Alright, Ampere Circuital Law. This law is analogous to Gauss's law in electrostatics. Uh, Gauss's law क्या था कि अगर आप अफेक्ट का फ्लक्स डेंसिटी का जो कि अफेक्ट है चार्ज की प्रेजेंस का इसका सरफेस इंटीग्रल इवेल्यूएट करें ओवर अ क्लोज सरफेस तो आपको क्या मिलेगा सोर्स ऑफ दिस अफेक्ट ठीक है यानी आपको मिलेगा चार्ज विच इज़ इक्वल्स टू फ्लक्स. So evaluating the surface integral of the effect, that is d, over a closed surface resulted in the source of d, that is q, within the closed surface. And to be precise, this charge is net charge. If there are negative charges and positive charges, so you add all the positive charges and subtract all the negative charges, whatever the net charge remains can be calculated using this Gauss's law. This Ampere Circuital Law, on the other hand, is analogous to that law, but this is applied to magnetostatics. ACL is not a standard acronym, so I'll be, however, using this ACL to refer to Ampere Circuital Law. And as most laws in magnetostatics are not derived, rather they are actually understood by understanding the parallel laws or analogous laws in electrostatics, such that Gauss's law, which is analogous to ACL, Ampere Circuital Law. So suppose that we have a conductor going into the page, and there is a current flowing through this conductor and which is also going into the page. Okay, so this x refers to or highlights that the fact that the current was going into the page, and this I is the amount of current which is flowing through this conductor, and we are considering DC current. So the current distribution across the cross section area is actually the same. So using the right hand rule, if we put our thumb in the direction of current, the fingers will show us the direction of magnetic field that is thus produced. So H is the magnetic field which is produced by I, and this is something which we had already discussed when we were discussing Biot-Savart's law, which is, by the way, analogous to Coulomb's law in electrostatics. So जब ये सिचुएशन है तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? इट सेज दैट इसी तस्वीर को, इसी पिक्चर को मैंने यहाँ पे एग्जैजुरेटेड बनाया है. अब नाउ आई हैव इंक्रीज्ड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर फॉर इलस्ट्रेशन पर्पसेस. तो ये कंडक्टर है जिसका एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, और यहाँ से करंट आई इनटू द पेज जा रहा है. और ये जो डॉटेड सर्कल्स हैं, कोसेंट्रिक सर्कल्स, ये एक्चुअली डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, एच की. सो अगर हम इस फील्ड में, एच में, कोई क्लोज पाथ ले रहे हैं, यहाँ पे क्लोज सरफेस था, एम्पियर सर्किटल लॉ में क्लोज पाथ है, और अगर हम इस पाथ के अराउंड लाइन इंटीग्रल इवेल्युएट करें, लाइन इंटीग्रल ऑफ व्हाट? ऑफ अफेक्ट. यहाँ पे हमने सरफेस इंटीग्रल ऑफ अफेक्ट लिया था. यहाँ पे अगर हम लाइन इंटीग्रल ऑफ अफेक्ट निकालें तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट द सोर्स विच इज़ एक्चुअली प्रोड्यूसिंग दिस एच. सोर्स ऑफ अफेक्ट वी आर गोइंग टू गेट. बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर जब इस क्लोज सरफेस के ऊपर सरफेस इंटीग्रल लिया था अफेक्ट का, तो हमें इस अफेक्ट की सोर्स मिल गई थी. बिल्कुल इसी तरह अगर हम एच जो कि अफेक्ट है इसके ऊपर लाइन इंटीग्रल इवेल्युएट करें और ओवर द क्लोज्ड सरफेस, और सॉरी नॉट सरफेस, क्लोज पाथ, वी आर गोइंग टू गेट द टोटल सोर्स विच इज़ enclosed, total source of this H which is enclosed by this path. So mathematically this is equals to this. Okay, so evaluating the line integral of the surface H over a closed path results in the source of H. Alright, जैसे कि यहाँ पे source of D हमें मिल गया था, यहाँ पे source of H मिल जाएगा, which is
विद इन द क्लोज पाथ, दैट इज़ द नेट करंट। यहाँ पे हमें नेट चार्ज मिला था, यहाँ हमें नेट करंट मिलेगा जो उस पाथ के अंदर बंद है, जो एक्चुअली एच की सोर्स है। ठीक है। So sometimes this I is referred to as normally it is written I, but it is actually referring the enclosed current enclosed by this path, वो current जो इस path के अंदर बंद है। So अगर ये path हमने कुछ ऐसा लिया हुआ है जो पूरे कंडक्टर को enclose नहीं करा, बल्कि कंडक्टर के एक ख़ास पोर्शन को enclose कर रहा है, जिसको यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शेड किया हुआ है। लेट्स से ये जो शेडेड एरिया है ये A1 है, और इस पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट आई फ्लो कर रहा है, जैसे कि पहले यहाँ कर रहा था, और इस कंडक्टर का पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। तो अब जो अगर आप करंट इनक्लोज निकालना चाह रहे हैं तो वो करंट होगा जो इस शेडेड पोर्शन से जा रहा होगा, विच इज़ एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द शेडेड एरिया। सो आई इनक्लोज इस केस में कैसे निकलेगा, A1 अपॉन A शेडेड एरिया divided by total area multiplied by the total current flowing through the whole cross section of the conductor. This is equals to this HTL. So ये इंटीग्रल आपको एक्चुअली क्या देता है, current enclosed by this path which is the source of H, current enclosed by this path which is source of H. Since इस केस में ये पाथ जो है पूरा का पूरा करंट अपने अंदर इनक्लोज किया हुआ है, तो हमें आई मिल रहा है। ठीक है, विच इज़ आई इनक्लोज्ड एक्चुअली बाय दिस पाथ। सो इस केस में जब पाथ पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरा का पूरा करंट अपने अंदर इनक्लोज नहीं किया हुआ, तो वो कितना करंट इनक्लोज करेगा, प्रोपोर्शनल करंट इनक्लोज करेगा। जाहिर है, जैसे मैंने पहले कहा था, ये डीसी करंट, मैग्नेटोस्टैटिक्स की जो सोर्स है वो डीसी करंट होती है, और डीसी करंट आमतौर पे क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर इक्वली डिवाइडेड होता है। तो अगर आपको किसी ख़ास पोर्शन से करंट निकालना है तो आप उतना ही जितना एरिया होगा यहाँ पे, उसी हिसाब से यहाँ से करंट फ्लो करेगा।